प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो। Consider the following pairs of species and their protected areas. So, species olive ridley turtle, protected area, Bhitarkanika National Park. Species Great Indian Bustard, protected areas, Desert National Park. Species Lion-tailed macaque, protected areas, Neora Valley National Park. Which of the pairs given above is or are correctly matched? Okay, fine, fine. Let's see what Divyang has to add here. Then we'll come to your doubts. Yes, Divyang. Yes. So answer is like as many people know कि because ये PYQ ये स्पीशीज जो है वो PYQ में आ चुकी हैं, तो इसलिए जो है वो काफी लोगों को पता भी होगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, एंड थर्ड जो है वो साउथ इंडिया में मिलता है, एंड न्योरा वैली इज इन नॉर्थ। सो इसलिए जो है वो बेसिकली दिस थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो थोड़ा ये नॉलेज एस्पेक्ट में था, एंड ऑल्सो ऑन हाउ की PYQ कैसे जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है, उससे रिलेटेड भी था। Yes, तो Olive आप Ridley. मुझे लगता नहीं इसमें कोई Ah, डाउट होगा। yes, yes. So as Divyang said, guys, Olive Ridley turtle, Great Indian bustard, lion-tailed macaque, इन सब पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एंड इनिशियली अ फ्यू इनिशियल क्वेश्चंस वी हैव केप्ट देम ऑन द इजियर साइड सो दैट एवरीवन यस। कैन रिलेट टू दीज क्वेश्चंस। धीरे धीरे आगे जैसा जैसा बढ़ेंगे डिफिकल्टी लेवल उस तरीके से बढ़ता जाएगा। इन द चैट बॉक्स गाइज आई कैन सी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। फाइन। सो गाइज नेक्स्ट फोर क्वेश्चंस व्हाट विल डू, विल take 50 seconds for each question. We'll answer those, then we'll come back to all the questions so that we can discuss those, the thought process behind those questions sequentially. So question number 2, Mansimar ने पढ़ लिया. Prakul, please read the next question. Consider the following countries: Russia, Turkey, Saudi Arabia, India. Which of the above countries are members of both G20 and BRICS group? 50 seconds guys. Right, time's up. प्रतीक्षा, तुमने कल रात को बैटमैन मूवी देखी थी क्या? तुम यहाँ पर मुझे उल्टी लटकी हुई दिख रही हो, अपसाइड डाउन। फाइन गाइस, लेट्स मूव अहेड। हाँ, नाउ इट्स राइट, अब सीधा दिख रहा है। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेराज पढ़ लो प्लीज। Consider the following statements regarding India's advancements in COVID-19 vaccine development. 1. India developed the world's first DNA vaccine for COVID-19. 2. India was the first country to approve a nasal COVID-19 vaccine. 3. The Covaxin vaccine developed by Bharat Biotech is based on the mRNA technology. Which of the statements is or are correct? 50 seconds guys, कंपल्सरीली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इवन इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, ट्राई टू अटेम्प्ट। ठीक है, लेट्स पिंच आवर ब्रेन इन दिस सेशंस। नहीं भी पता है मार्क करो, गलत होगा चलेगा। फाइन गाइज, टाइम्स अप। सूरज, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. It allows individuals to approach the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights. It applies only to the citizen of India. The Supreme Court may issue writs like habeas corpus and mandamus to protect fundamental rights. Which of the following statement regarding the rights to constitutional remedies are correct? 50 seconds guys, 50 seconds. All right guys, time's up. And lastly, Saisri, please read the next question. Consider the following: Krishna, Tungabhadra, Mahanadi, Bhavani, Kaveri, Kabini, Narmada, Vainganga. How many of the above rivers are collectively paired with their tributaries? Fine guys, 50 seconds. Please compulsorily attempt all the questions. Doesn't matter if you go wrong. All right guys, time's up. Okay, Divyank, क्या बोलोगे? So I think this was a easy question because G20 and ब्रिक्स दोनों ही जो है वो अभी काफी एक्टिव है, काफी न्यूज बताए, तो ये सही होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली काफियों का नहीं है। तो जैसे रशिया एंड इंडिया तो पता है सबको, 1 and 4 तो आंसर में होगा, बट टर्की इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, सो यू कैन एलिमिनेट दैट। तो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब जो है वो नाउ यू आर कंफ्यूज कि सऊदी अरेबिया है कि नहीं है। सऊदी अरेबिया ब्रिक्स का तो है, बट यू डोंट नो अबाउट G20 बिकॉज
19 नेशंस एंड यूरोपियन यूनियन, तो इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो ऐसे केस में अगर शो शॉट ना पता हो, पहली बात तो पता होना चाहिए, बिकॉज G20 इंडिया की जो है वो, इंडिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ G20, तो पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता है तो यू ऑलवेज हैव दैट ऑप्शन कि इवन फॉर इवन नॉट फॉरवर्ड वाला, कि अगर 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन देन यू कैन मार्क 2। तो ए जो है वो आंसर होगा इसका, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो मतलब अपने आप एज्यूम करने की नीड नहीं है कि सऊदी अरेबिया होगा ही होगा। So that is how you use your knowledge and the technique aspect. I think it's pretty, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की और नीड होगी नहीं, बट इवन अगर किसी को Guys, कुछ पूछना है। the new students, you might find things a little bit abstract in the beginning. जैसे अभी दिव्यांग सर ने बताया कि Yes, yes. ऑड का ऑड, इवन का इवन, दिस इज अ ट्रेंड दैट ही हैज ऑब्जर्व्ड। सो 4 यहाँ पर Actually, हम्म, yes, yes. Many of these people, like many of you wouldn't have heard about this technique or anything, मतलब, बट ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो हमको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, सो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स आएंगे, टर्मिनोलॉजीज आएंगी, तो गेट यूज्ड टू इट विद टाइम, इट विल बिकम वेरी नेचुरल टू यू, लाइक इट yeah. विल बिकम योर सेकंड नेचर। तो इसलिए डोंट वही कि जो है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है या पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो बोल रहा हूँ मैं वो सही बोल रहा हूँ, आई कैन बेट ऑन दैट। बाकी आपको ग्रेजुअली वो खुद रियलाइज हो जाएगा। लर्निंग्स विल कंपाउंड। सो ऑल इन ऑल परेशान होने की जरूरत नहीं अगर शुरुआत में थोड़ा सा आप कैच नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी का कोई डाउट है, प्लीज गाइस रेज योर हैंड, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। नो डाउट? सर इसका आंसर ए है ना? आंसर पर आएंगे गाइस। यस दिव्यांग, क्या बोलोगे? हाँ हाँ सर, एक्चुअली इसमें कोई टेक्निक नहीं है सच, दिस इज अबाउट, यूपीएससी ने 2022 में ये पूछा हुआ है, एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कोवैक्सिन एंड अदर थिंग, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट सम ऑफ द ब्रेक थ्रूज व्हिच इंडिया अचीव्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम। तो एक्चुअली इसका आंसर इज ए, 1 and 2, क्योंकि फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इंडिया, दैट वाज अ लाइक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट कि इंडिया ने वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन बनाई थी, जाइकोव दी। सेकेंड वाला था जो इंसा इंसा वैक करके जो है वो एक, इनको वैक करके कुछ एक वैक्सीन बनी थी, एक जो नेजल वैक्सीन थी फॉर कोविड, तो दैट वाज आल्सो फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। एंड थर्ड तो काफी आसान था एलिमिनेट करना, बिकॉज इट वाज नॉट एन mRNA टेक्नोलॉजी, तो इसलिए इसमें थोड़ा वो नॉलेज एंगल भी आता है, बट इट इज रिलेटेड टू पीवाईक्यू, यूपीएससी ने पहले पूछा है और अच्छा, आगे भी पूछ so सकती है। in this तो question you are emphasizing on the PYQ linkage more and less on the यस यस, technical. 2022 में सर एग्जैक्ट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, कोविशील्ड पे क्वेश्चन था उसमें, और हम्म एक और था, आई एम फॉरगेटिंग कि सेकंड स्टेटमेंट क्या थी उसमें, बट हम्म, 3 स्टेटमेंट थे सॉरी उसमें, तो आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन था इस टाइप का। ठीक है तो ठीक है। इसलिए ठीक है तो PYQ। ऐसे जो भी, व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि जब भी ऐसा जो मेजर ब्रेक थ्रूज होते हैं जिसमें इंडिया इज फर्स्ट थिंग, या इंडिया इज अमंग द टॉप 2-3 नेशंस, जैसे अभी डिफेंस में जो है वो इंडिया इज बिकमिंग अमंग द टॉप 4 कंट्री, टॉप 3 कंट्री, लाइक आपको आगे अभी क्वेश्चन मिलेगा उसका भी, तो उस पर हमेशा फोकस होना चाहिए। वो फैक्ट है, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि वो फैक्ट है, फैक्ट आपको हटा देने हैं, बट ऐसे फैक्ट आपको पता होना चाहिए जिसमें इंडिया इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो जैसे G20 वाला आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दैट वाज अ मेजर ग्लोबल लीडरशिप थिंग इंडिया डिड इन द रिसेंट टाइम्स, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसका मेंबर कौन है, कैसा है। तो ऐसी चीजों में आप नॉलेज से बच के भाग नहीं सकते, आपको जो है वो नॉलेज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बट बाकी केसेस के लिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट थिंग कि भाई फैक्ट है, बहुत ही लेसन नॉन फैक्ट है, आई एम गोइंग टू एलिमिनेट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एम्फसाइज ऑन दिस क्वेश्चन। Okay guys, if anyone ओके has a doubt you can raise your hand, and I'll take up your doubt. ठीक है, so no doubt here. Next question. Fine, guys, basic पॉलिटी का क्वेश्चन है, as such दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए because this is part of our regular लक्ष्मीकांत readings. क्या बोलोगे दिव्यांग? हाँ हाँ सर, वही बेसिक क्वालिटी है, मतलब ये दिस इज समथिंग यू रीड इन द फर्स्ट टाइम, मतलब पहले स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, काफी कोचिंग से भी पढ़ो या खुद पढ़ो तो भी जल्दी आ जाता है। एंड जैसे आंसर इसमें आ ही जाना चाहिए था, सेकंड को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, तो उससे आंसर आ जाएगा, बट जैसे पहली स्टेटमेंट में ये अभी डाउट रेज हुआ कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं।
तो ऐसा there is a difference between writing only Supreme Court and so approach the Supreme Court directly. So you should understand the difference between these two. बाकी आर्टिकल 32 काफी कॉमन आर्टिकल होता है, मतलब इवन इन द इंटरव्यू अगर जो है वो पूछते हैं आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग, तो इसलिए जो है वो बहुत ही कॉमन है, तो पता होना चाहिए उसके बारे में। बस वही बताना था। आई डोंट थिंक कि अब किसी को डाउट होगा इसमें। मेरा इट वाज यू राइट, स्टेटमेंट वन में तुमको कंफ्यूजन हुआ था कि हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। नहीं सर, आई थिंक सूरज का डाउट। सूरज, ओके सूरज। Yes. So again, the learning that comes out from here, if something has not been given explicitly by the question, we need not assume it on our part. There's a statement one, it says that it allows individuals to approach to the Supreme Court directly for enforcement of fundamental rights. So that comes under original jurisdiction of Supreme Court. ठीक है, and that is the ultimate benchmark, ultimate safety provided by the Constitution to every individual. आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को पर जाकर आपका दरवाजा खटखटा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स की पूर्ति के लिए, राइट? लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हो, लोअर कोर्ट को भी जा सकते हो। डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? Yes. ठीक है, एंड लास्टली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फाइन फाइन Yes. फाइन। दिव्यांग क्या बोलोगे? Yes, sir. Sir, like answer is only two pairs. Krishna and Kaveri is the right answer. But answer पे answer तो ठीक है. The thing which I want to say कि rivers को काफी डिटेल में पढ़ना है, because that is something which UPSC is focusing on. हर साल एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो आते हैं. So you should be aware कि कौन से रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसमें उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ कौन सी सिटीज लोकेटेड हैं उसके बैंक पे, एंड व्हाट आर द माउंट इट फ्लोज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस। तो ये सब चीजें काफी डिटेल में पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। अच्छी बात है, काफी लोगों ने सही किया, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज कि फोकस ऑन मैपिंग, स्पेशली द रिवर पार्ट एंड द माउंटेन हिल्स पार्ट, सो दैट यू आर एबल टू मेक इट राइट। वहां पे आप एज ले पाओ बाकी से। So that's all. We can Fine, move on to fine. next set of five. Next Fine. question. Next set of questions पर जाएंगे गाइस। कोई डाउट है किसी का बिफोर वी मूव अहेड गाइस? क्योंकि आगे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे, वी वोंट बी कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चंस। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन? तेज, लास्ट क्वेश्चन में ओनली टू पेयर अभी डिस्कस किया हमने। Is the last वो he's asking about the fourth question. प्रीवियस क्वेश्चन Yes. इसका आंसर ये है, first and third. फाइन गाइस, let me come to new set of students again, 50 second each, and साई प्रतीक, कल मैं तुमको सुन नहीं पाया था, देखते हैं आज सुन पाएंगे या नहीं। Yes, sir. ओहो, वेरी गुड। साई प्रतीक, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. With regard to India's climate goals, consider the following statements. India has pledged to achieve net zero carbon emissions by 2050. Second, India aims to increase its non-fossil fuel energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Third, the country's goal is to meet 50% of its energy needs through renewable sources by 2030. Which of the statements given above is or are correct? 50 seconds गाइस, 50 seconds कंपल्सरीली आंसर करो, एंड प्लीज नोट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक और ऑन अ पीस ऑफ पेपर। 5 क्वेश्चंस बैक टू बैक हम करने वाले हैं। फाइन गाइस, टाइम्स अप, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यम, please read the next question. Reference to International Atomic Energy, consider the following statements. IAEA promotes peacefully uses of nuclear energy, is responsible for nuclear safety and non-proliferation. Second, it is specialized agency of the United Nations with its headquarters in Geneva, Switzerland. Third, IAEA primary role is to monitor nuclear disarmament treaties among its member states. Which of the following statement is given is correct? 1 only, 1 2 only, 2 3 only, 1
2, 3 only. Yes, guys, 50 seconds, max 50 seconds. Time's up, guys. Time's up. Next question. Mahesh, please read the next question. DNA fingerprinting is commonly used for which one of the following purposes? First one is criminal investigations and forensic analysis. Second, paternity testing. Third, identification of genetically modified organisms. And fourth is wildlife and conservation biology. 50 seconds, guys. इसमें बी और डी सेम ऑप्शन बन गया है, सो यू कैन इग्नोर दैट. मतलब ए, बी और सी में से बता दो. Fine, guys. Time's up. Let's take up the solutions now. The thought processes behind every question. Divyang, you want to say something? नो सर, दैट वाज इजी क्वेश्चन. मतलब सबको ही पता है कि 27, वो बस इसीलिए मैंने पुट किया था कि वो इजी क्वेश्चन था, एक होना चाहिए. तो 2070 इज द टारगेट. तो इफ यू एलिमिनेट दैट यू विल गेट द आंसर. उसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आई गेस. किसी को हो तो ठीक है, can 5 do क्वेश्चन otherwise. कर लेते हैं, इसके बाद अगर डाउट है तो हम लेंगे एक साथ ही. अच्छा, दिव्यांग क्या बोलोगे? सो लाइक पर्पल रीजनिंग वाज राइट. थॉट प्रोसेस की थर्ड सेकंड तो सबने एलिमिनेट किया होगा एंड उससे आंसर आ जाएगा. बट फोकस ऑन द थर्ड स्टेटमेंट एज वेल कि इट इज मेकिंग इट वेरी स्पेसिफिक कि इसका रोल जो है वो बस न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तक लिमिटेड है. सो लाइक एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एज बिग एज आईएईए, व्हिच इज अ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, उसका रोल जो है वो किसी एक एस्पेक्ट में लिमिटेड नहीं रह सकता. इट इज generally there are many components of things in which it is involved. So by that logic also you can eliminate third statement. So and first is again generic. So that's how we arrive at an answer. This answer. So answer is A. Next ठीक question पे sir. ठीक है, ठीक है. दिव्यांग क्या बोलोगे? The answer all four है. Everyone मतलब मैक्सिमम लोगों ने सही किया है. बट लाइक अभी जीएमओ वाला ऑप्शन हटा है. सो आई जस्ट वांट टू से कि वो जब भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन की बात होती है, so just ask yourself कि before you are eliminating any statement, are you 100% sure in your word कि it can't be used in any case. अगर आप 100% sure नहीं हो तो don't eliminate whenever there is a application of a technology because it is scientific and futuristic. तो अभी नहीं होता है तो आगे भी हो सकता है. तो या कहीं पे हो रहा होगा, किसी ने एक बार भी लैब में किया होगा तो भी पॉसिबिलिटी है. So don't eliminate that statement until unless you are 100% sure कि वो possibility है ही नहीं. So that is what I wanted to Guys, say. word association. What do you understand by the term fingerprint? If I ask Shoaib, Shoaib तुमने हटा दिया Yes, था yes. GMO को, right? Shoaib? Yes, sir. So word play, Sir, guys. fingerprint. Call it word play. Call it word association. What do you understand by the term, the word fingerprint? बेसिकली ये फिंगरप्रिंट का मतलब तुम हाथ के ये होता है. और ये मैंने हाल फिलहाल में ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था. तो पेंटिंग वाला और क्रिमिनल वाला में हो गया. हाँ हाँ, मेन नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन पर हम आएंगे. सी, फिंगरप्रिंट मतलब बेसिकली हम अपनी छाप हम छोड़ देते हैं. फिंगरप्रिंट, राइट? दैट्स अ यूनिक आइडेंटिफायर. ठीक है. सो बेसिकली अ स्ट्रीक ऑफ समथिंग इज लीडिंग टू द ओरिजिनल ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल थिंग. सो डीएनए का अगर फिंगरप्रिंट है, इट्स डेफिनेटली नॉट अ लिटरल टर्म. ठीक है. अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए दैट इज हेल्पिंग यू ट्रैक the original thing. So identification of GMOs, genetically modified organisms, if you have access to the genetic component, genetic material, you'll be able to access it, track it. Make sense, Shoaib? Yes, sir. Okay. Anything you would want to add here, Divyang? The last thing, word association जो हमने डिस्कस किया. नो सर, मतलब हाँ, एक जो आपने ये बात बोली कि वर्ड एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट. लाइक जीएमओ है तो एंड डीएनए की बात हो, ये तो एनी मतलब वो लिंक तो होगा ही. तो इट इज वेरी ऑब्वियस. बट ठीक है, दिस इज हाउ यू लर्न. आई थिंक सर सचिन वाज रेजिंग हैंड. ही इज हैविंग सम डाउट. सो Tell me your name again. Krishna. Krishna. Yes, Krishna.
सर इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, सर इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था सर, उसमें अगर मुझे वो फैक्ट नहीं पता तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सा फैक्ट नहीं पता? सर द 2070 वाला फैक्ट। पढ़ अच्छा के भाई, पढ़ के। क्या बोलोगे दिव्यांग? पढ़ के ऑब्वियसली, मतलब पढ़ना पड़ेगा, दैट इज अ बेसिक थिंग, उतना यस तो सर। आना यस, चाहिए। सी व्हाट दिव्यांग हैज इज एम्फसाइजिंग हियर, जब दिव्यांग ने एक्सप्लेन भी किया था, क्वेश्चन यही बोला था कि गाइस समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ योर बेसिक करंट अफेयर्स प्रिपरेशन, अब हम जो यस सर। क्लासेस में करने वाले हैं, बी इट योर पीआई पीआईबी माइक्रो थीम्स सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स एंड सो ऑन। अदरवाइज इन जनरल भी अगर कोई भी बच्चा करंट अफेयर्स पढ़ रहा है उसको ये पता होना एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली वी हैड डिस्कस्ड दिस थिंग यस्टरडे, निर्भय मिसाइल का रेफरेंस आया था, तो अ स्टूडेंट हैज सेड दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट निर्भय मिसाइल। मैंने यही बोला था कि ये नहीं चलेगा, निर्भय मिसाइल के बारे में आपको यस सर। पता होना एक्सपेक्टेड है। इट इज कवर्ड सो मच इनटू न्यूज, इट्स अ प्रोमिनेंट मिसाइल, राइट? सो नॉलेज गैप वहां पर बिल्ड करना जो है सो भरना पड़ेगा, तभी जाकर ये टेक्निक्स एंड थॉट प्रोसेस इफेक्टिवली हम यूज कर पाएंगे। मेक सेंस कृष्णा? ओके सर। यस एंड सर। आई अज्यूम कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अभी। यस सर। हाँ हाँ, सो भाई अभी अभी जो है वो थोड़ा आप न्यूज मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ोगे, तो उससे उसमें ये सब चीजें बहुत बेसिक फैक्ट होती हैं, सो यू विल नो दिस, फर्स्ट रीडिंग में ही जो है वो आ जाएगा, ये तो आना ही आना है, इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट। यस यस, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो विद टाइम जो है वो नॉलेज गैप खत्म हो जाता है। yes, ओके सर। we will be covering this in the upcoming classes. Fine guys, let me come to new folks. Please read the question. Again, guys, please jot down the answers of these questions on a piece of paper as we move ahead. Yes, Basila. Which of the following polymers is used in the production of biodegradable batteries? Polylactic acid, polyethyl terif PET, sorry, nylon 6,6, polyvinyl chloride. Okay, 50 seconds, guys. बासला ये पीवाईक्यू है, पॉलीथीन Yes, sir. टेराप्लेट। Yes, sir. I know what it means also, लेकिन थोड़ा सा ओके pronunciation. फाइन गाइस, टाइम्स अप। कृष्णा, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement regarding the hypersonic technology demonstrator vehicle HSTDV. The HSTDV is capable of achieving speed greater than Mach 5. The second is it is developed by ISRO. Third, the HSTV is a key component of India's plan to develop hypersonic cruise missiles. The vehicle is powered by nuclear energy. 50 seconds, guys. आई थिंक बासिला को इसका आंसर नहीं पता, इज ट्राइंग टू फिगर आउट। फाइन गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। कंपल्सरी मार्क करो गाइस, प्लीज मार्क योर आंसर्स कंपल्सरीली। आई वुड रैंडमली आस्क यू गाइस टू आंसर। निधि, राइट? निधि, please read the next question. With reference to the Aditya L1 mission, consider the following statements. Statement 1. Aditya L1 is India's first dedicated solar mission aiming to observe the sun from the Lagrange point 1 L1. Statement 2. The mission was designed to remain in a geostationary orbit around the Earth. Which of the above statements are correct? Both statements are correct, and Fine. statement 2 explains 50 seconds, guys. 50 seconds ले लो। Fine, guys. Time's up. अखिलेश, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। बासिला, इस क्वेश्चन में भी तुमको दिक्कत हो रही है, मुझे सामने दिख रही हो तुम। नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। अखिलेश, प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a tool developed by NASA to visualize historical and projected effects of climate change? Fine, guys. 50 seconds. Fine, guys. Before moving to the next question, Akhilesh, did you mark beta? You can just say yes or no.
नो, ठीक है, ठीक है, विल कम बैक टू इट. एंड लास्टली, Harmeet, I think, is in the library. Mahesh, please read this question. In recent times, Mozambique gained attention in international trade relations for the import of tur dal from the Nacala port. Which one of the following geographical feature is most associated with location of Nacala port? Option one, oh no, sorry, option नहीं है. Indian Ocean, Zambezi River Delta, Limpopo River Basin, Mozambique Channel. Fine, guys, 50 seconds. All right, guys, time's up. Time's up. I can't see Divyank on the screen. Yeah. Fine. Divyank, Hello. can you unmute? Yes, sir, yes. Is your camera on, Divyank? I can't see on the screen. Is it now? Hi, it's visible now. Fine. Okay. So, guys, let's get back to the first question. So, Divyank, yes, please. Yes. So आंसर इज ए. बट इसमें एलिमिनेशन कैसे होगा, मतलब अगर या फिर कैसे आंसर पे आएंगे वो हमको देखना चाहिए. तो जिसको नहीं पता है, सो वी नो कि पीवीसी एंड पीईटी बॉटल्स या नाइलॉन 66 these are all पॉलीमर्स. तो जो जनरली मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. And while lactic acid is actually something which is produced in the body, बहुत अभी तो बहुत कॉमन हो चुका है. You hear people being they won't take lactose, दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. तो मतलब ये बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है अभी तो. सो लाइक दिस इज समथिंग यू कैन रिलेट विद दैट कि पॉलीलैक्टिक एसिड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. तो उससे जो है वो आप लिंक कर सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल होगा. एंड इस तरीके से आपको अगर नहीं भी पता है, दैट इज हाउ यू यूज द कॉमन सेंस एंड द बेसिक नॉलेज जो इन जनरल लाइफ में यूज होती है. एंड यू अराइव एट दिस आंसर. सो ये थॉट प्रोसेस था. बाकी किसी को डाउट हो इन टेक्निकल टर्म्स, गाइस, जो हम लॉजिक बिल्डर क्लासेस में इसको सीखेंगे शुरुआत से, देयर वी कॉल इट वर्ड प्ले, ऑल्सो एक्सट्रापोलेशन. बेसिकली हम बचपन से सीखते आए हैं कि दही कैसे बनता है, वहां पर लैक्टिक एसिड का क्या रोल होता है, राइट? तो एक्सट्रापोलेटिंग आर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग इट टू द गिवन क्वेश्चन. साई प्रतीक, क्या डाउट है तुम्हारा? Yes, sir. I was talking about the same lactic acid as Divyang sir said. Can we use lactic acid as a key to unveil this answer? वही तो बोला अभी दिव्यांग ने. हाँ, yes sir. I raised the hand earlier. Okay. किसी को डाउट नहीं है तो we can move on to next question. Okay. Fine. Next one, दिव्यांग. हाँ सर, लॉजिक यही है. जैसे फोर्थ स्टेटमेंट आप सबसे पहले हटा सकते हो. जैसे सिर्फ राइट आंसर पे मत देखो, आप ये देखो कि कौन सी स्टेटमेंट जल्दी एलिमिनेट करके जल्दी आंसर आ सकता है. मतलब अब अगर आपको टेक्निक में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है या आपको नॉलेज है उस क्वेश्चन की, सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन कि भाई किससे जल्दी ऑप्शन आएगा. तो अगर फोर्थ आप एलिमिनेट कर दो आपका आंसर सीधे वैसे ही आ जाता है. तो आपको सेकंड के बारे में सोचने की नीड ही नहीं है. तो दैट इज जस्ट वन थिंग. बट वही है कि न्यूक्लियर एनर्जी तो दो टाइप की होती है, फिशन या फ्यूजन. फ्यूजन अभी वायबल हुई नहीं है, कमर्शियली वायबल तो हुई नहीं है फ्यूजन वाली. और फिशन जो है वो अभी बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है. तो मिसाइल को तो पावर करना मतलब इज समथिंग जो अभी थोड़ा वो फार फेच्ड लगता है. सो यू कैन एलिमिनेट दैट. एंड मिसाइल का वैसे भी जैसे बोला काफी लोगों ने कि मिसाइल इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ नॉट इसरो. तो वो भी आप लगा सकते हो. So again, it is mix of knowledge and something common sense. So answer will be B, first and third. So I Yes. think it's clear. Yes, and guys, in the logic builder classes, we'll be also discussing this in detail. There is one component called as the compatibility test. Statement 2 and statement 3. Statement 3 बात कर रहा है hypersonic cruise missiles की, यहाँ पर ISRO. So we probe whether the given statements are compatible. Can the given organization be involved in production of those particular things? अब यहाँ पर organization और मिसाइल की बात हो. There can be other things which might be or which might not be compatible with each other, right? So we'll discuss those things in detail. अभी के लिए आगे बढ़ते हुए, fine. दिव्यांग, क्या बोलोगे?
सो लाइक सेकंड स्टेटमेंट में डाउट है लोगों को, बट दैट इज अगेन कॉमन सेंस कि आदित्य एल1 जो है वो मिशन इसलिए ताकि वी कैन ऑब्जर्व द सोलर वेव्स, या फिर जो है वो कोरोना को ऑब्जर्व कर सके उससे। सो वो जियो स्टेशनरी क्यों होगा? जियो स्टेशनरी का मतलब होता है कि जो है वो अर्थ के सराउंड में होगा, बट इट शुड बी इन सिंक विद द सन, दैट इज व्हाई द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। तो आपको वो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि अर्थ को थोड़ी ऑब्जर्व करना है, वी हैव टू ऑब्जर्व द सन, तो उसके सिंक में होना चाहिए, अर्थ के सिंक में नहीं। सो दैट इज हाउ यू कैन एलिमिनेट स्टेटमेंट 2, और उसके बाद तो सीधे आंसर है सी। ठीक है, फाइन। अगेन वर्ड प्ले। इज देयर एनीवन हु डिड नॉट नो द who had not heard or read about Aditya L1 मिशन? कोई है ऐसा गाइस? प्लीज रेज योर हैंड। सबने पढ़ रखा है? चलो अच्छी बात है। अगर नहीं भी पढ़ रखा है गाइस, तो बेसिक प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, आदित्य हम किस चीज को बोलते हैं? सन। सन का ही दूसरा नाम है, राइट? सो उससे आप एसोसिएट कर सकते थे, एंड इफ यू आर एसोसिएटिंग समथिंग विद द सन, अगेन गाइस हमने अभी कंपैटिबिलिटी टेस्ट पढ़ा थोड़ी देर पहले। जैसे बासिला को सन सिंक्रोनस याद नहीं आ रहा था, बासिला। सो आदित्य L1 मिशन की बात हो रही है स्टेटमेंट 1 में, लैग्रेंज पॉइंट की बात हो रही है, और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अप्लाइंग कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इफ अ मिशन इज एम्ड एट स्टडिंग द सन, एंड if someone says that it has to be just in the geostationary orbit, does that make sense to you? Are both the statements compatible? No, sir. Right? So yes, so that is a basic application of compatibility test. Next, now before Divyang shares his thought process, Nidhi, you said that it won't be a time machine. Here we are not speaking of a literal time machine. Remember we just discussed about DNA fingerprinting. Yes, There, sir. we're not speaking of literal fingerprints, but an Yes, sir. implication. That was a symbolic term, right? Yes, sir. Yes. So यहाँ पर किस तरीके से वर्ड प्ले हो रहा है, दिव्यांग विल explain you in detail. Yes, दिव्यांग. Yes, sir. So again, like first read the question. उसने पूछा है कि tool developed by NASA to visualize historical and projected effects of climate change. So not only past but also future. अब Yes. पास्ट और फ्यूचर को जो कनेक्ट करता है वो क्या होगा? मतलब एटलस इज अबाउट ज्योग्राफी तो मतलब नहीं कनेक्ट करेगी। सी इज कैलकुलेटर इज ऑल्सो मतलब फील नहीं आएगी। सेंटिनल इज अबाउट ऑब्जर्विंग। बट अगर विजुअलाइज करना है कि भाई किसने इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो तो टाइम मशीन में जाके जो है वो आप जा सकते हो ना, कि उस पहले टाइम मशीन में पहले पास्ट में गए, देखा कि इफेक्ट क्या था, आगे फ्यूचर में गए, वहां पे जाके देखा कि इफेक्ट क्या था। तो दैट इज हाउ वर्ड प्ले इज बीइंग डन इन दिस क्वेश्चन। तो टाइम मशीन मेक्स मोर सेंस, ऑल्दो ये थोड़ा अगर आप पहली बार जब पढ़ोगे, जब मैंने पढ़ा या जब कोई भी पढ़ेगा, तो उसको वो रियलाइज होगा कि टाइम मशीन तो बहुत ही मेड अप सॉर्ट ऑफ लग रहा है कि भाई बस नाम के लिए बना दिया होगा, बट ये एक्चुअली में टूल डेवलप है नासा का। तो ठीक है, ये गलत होने के बहुत हाई चांस होते हैं, बट दिस इज समथिंग बट यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, कि कैसे जो है वो सोचते हैं, कैसे जो है वो यूज द वर्ड प्ले एटमोलॉजी to arrive at an answer. Yes. Sir, if you want to add something on this. Yes. So before I come to Basila's question, so जैसे दिव्यांग ने बताया guys, visualizing historical मतलब पुराना, past and projected मतलब future। हम इतने मूवीज देखते आए हैं बचपन से। आई एम श्योर टाइम मशीन के ऊपर किसी सबने कोई ना कोई मूवी देख रखी होगी। तो टाइम मशीन की यूटिलिटी, ऑल्दो इट्स अ साइंस फिक्शन, लेकिन सबको पता होता है। सो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि समथिंग ऑफ द पास्ट एंड समथिंग ऑफ द फ्यूचर is going to be analyzed, so and if I ask you, given this description, which of the following option is most compatible with this description, what would you say, Basila, before you ask your question? सबसे compatible option कौन सा है इस description के साथ? सब बी है। तो मार्क क्यों नहीं किया तुमने? सर पहले I marked B only, but then I thought it's a trap, तो इसीलिए। गुड क्वेश्चन। अगेन वन अनदर स्टूडेंट हैड हाइलाइटेड दिस कि सर ये ट्रैप लग रहा है। ट्रैप कब होता है गाइस? व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। यहां पर क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं हो रही है, टाइम ट्रैवल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वी आर इंप्लाइंग दैट हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस, सो इट कैन I would या
No, sir, please complete. तो Then, हिस्टोरिकल मतलब पुरानी पुरानी बातें और फ्यूचर प्रोजेक्शंस. सो इट माइट रिलेट टू अ टाइम मशीन. दैट्स द implication वी आर ड्रॉइंग. ठीक है. अगर यहां पर टाइम ट्रैवल के बारे में लिखा होता तो उसके ज्यादा चांसेस होते गलत होने के. हम जब पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा कि यूपीएससी किस तरीके से ट्रैप्स सेट करती है. दिव्यांग ने इस पर्टिकुलर चीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी किताब में, जो वो भी रोल आउट करने वाले हैं. दिव्यांग. yeah, yes, sir. So, Basla, have you gone through like 2024 prelims paper? Yes. So there are two. I will give you reference to two questions. One question was, if you remember, मैंने तो actual exam में दिया था, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छे से याद है कि वो that question was about which of the textbook was written by भाषा by भाषा. ऐसे एक क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शंस थे कि प्रजन परमिता. सॉरी, ऑप्शन उसमें 2 थे. एक था एक था महाभाष्य, और एक था कुछ महाव्योम करके ऐसा कुछ था. तो भाषा और महाभाष्य मेरे को बहुत डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा था कि मतलब इतना ज्यादा तो सीधे आंसर नहीं हो सकता कि भाषा का पूछा है ना ऑप्शन में, महाभाष्य है तो सीधे वही हो जाएगा. तो ये होता है ट्रैप, मतलब इसको बोलते हैं जब एकदम सीधे सीधे कनेक्शन दिखा दिया उसमें. तो ऐसे करके ये ऑप्शन तो मैंने इसलिए एलिमिनेट कर दिया था, और वो मैं सही करके आया था, फिर मैंने सही ऑप्शन टिक किया. ऐसे ही एक और क्वेश्चन था जहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है, जहाँ पे इम्प्लाई करता है यूपीएससी. दैट क्वेश्चन वाज अबाउट I think ऑपरेशन metaverse. सद्भावना. ऑपरेशन सद्भावना का एक क्वेश्चन था, जिसमें जो है वो उसमें पूछा था कि इंडियन आर्मी हैज टेकन सम पॉजिटिव एफर्ट्स इन सम रिमोट एरियाज. तो वहां पे जो है वो सद्भावना वाज समथिंग व्हिच वाज लुकिंग मोर रेलेवेंट. बाकी ऑप्शन थे कुछ, एक संकल्प ऑप्शन था, एक मित्र ऑप्शन था. तो वो इम्प्लाई नहीं हो रहा था उतने अच्छे से. बट सद्भावना इज समथिंग व्हिच यू डू आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ योर हार्ट. तो वो अच्छा रिलेट हो रहा था. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी कहाँ पे ट्रैप सेट करती है और कहाँ पे नहीं करती है. डायरेक्ट इम्प्लाई होगा तो फिर तो पक्का वो ट्रैप है. बट अगर वो सीधे मतलब कुछ आप लॉजिक लगा के वहां तक आए हो तो वो सही सोच रहे हो आप. बिकॉज आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो इसलिए जो है वो इतना टफ नहीं बनाएगी कि आपको सोचने में ही 2-3 मिनट लग जाए. तो ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है. आई होप थोड़ा क्लैरिटी आई होगी. क्लियर वसीला? Yes, sir, I'm clear. लेकिन थोड़ा सा भी प्रैक्टिस लगेगा because I often get confused. थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा, और मैं आपसे प्रैक्टिस करवा कर लूंगा. ठीक है. अभी अगर आप सेंस बना पा रहे हो इन लर्निंग्स का, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. शुरुआत में, आज पहला दिन है गाइज, पहला रैंकर सुपर टेस्ट अभी कंडक्ट हो रहा है. अगर आप कनेक्ट कर दैट्स अ गुड स्टार्ट. ठीक है. प्रैक्टिस हम बहुत करने वाले हैं. अदरवाइज लर्निंग वाइज, लॉजिक वाइज आप क्लियर हो बासिला? Yes, sir. ओके. लास्ट वन, दिव्यांग क्या बोलोगे? Yes, sir. So this is about the Mozambique के regarding है. So first thing is that ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका पे यूपीएससी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मतलब बहुत ज्यादा जो है वो आपको फोकस होना चाहिए कि कौन से रिवर जो है वो कौन से कंट्री में रहती है, और कौन सा विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नोन फॉर एनी पर्टिकुलर मिनरल और एनी पर्टिकुलर क्रॉप. लाइक अभी कोटे दे आईवे पे क्वेश्चन पूछा था 2023 में. एंड देन दे आस्क्ड अबाउट कॉन्गो, देन कॉन्गो बेसिन पे पूछा. तो ऐसे दैट इज समथिंग अफ्रीका पे बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट. या दे आर आल्सो आस्किंग अबाउट सक्सेसफुल coups which have happened, and also in the Sahel region, like which is the region which are not so well developed. तो वो सब रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तो बाकी चीजों हो गई. कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, दिस इज अबाउट मोजाम्बिक. सो मोजाम्बिक में मतलब पहला बात तो ऑब्वियस है कि भाई मोजाम्बिक जो है वो, अगर आपने थोड़ा सा भी मैप देखा होगा तो यू नो कि इट इज ऑन द साइड ऑफ इंडियन ओशन. तो ऑप्शन में पहला पहला तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आएगी आएगी. एंड देन मोजाम्बिक खुद दिया हुआ है ऑप्शन में. तो फर्स्ट एंड फोर्थ तो मतलब सीधे सीधे फिर जो है वो बन जाएगा. तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने का था नहीं. सो आंसर विल बी 1 and 4. प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following species of the mammals use cooperative hunting strategies similar to the bubble net technique? Humpback whale, Arctic fox, African wild dog, or bonobo? 50 seconds guys, 50 seconds. All right guys, time's up. Please note down your answers on a piece of paper.
Let me come to Nandini. Consider the following with reference to Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Consider the following statements. PMJAY is aimed at providing free medical treatment to low-income families. It is a universal health coverage scheme that targets all citizens of India. The scheme provides an annual coverage of rupees 5 lakh per family for secondary and tertiary care hospitalization. 50 seconds, guys. Fine, guys, time's up. Let me come to Sai Pratik. Please read the next question. Which region of India is home to the largest populations of the Indian pangolin? 40 seconds, guys. इसमें 40 seconds. Time's up, guys. Miraz, please read the next question. The quantum communications program launched by India in 2024 focuses on A. Developing quantum computing systems for industrial applications. B. Ensuring secure communication through quantum encryption. C. Commercializing quantum-based technologies for defense use. D. Establishing quantum energy systems for sustainable development. Fine, guys. 40 seconds again. Fine, guys. Time's up. Fine. दिव्यांक क्या बोलोगे? यस सर, इसमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो क्लू है. फर्स्ट क्लू इज about the mammal and second is about the bubble net technology. So like if you so bubble net so उससे जो है वो फील आती है कि something which is happening in water, और मैमल वाले से जो है वो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो. सो दोनों ही जो है वो कन्वर्ज होते हैं एट humpback whale. So like if you have no idea, just by taking clue from the question itself, you can mark this question right. So this is how you look for some of the secret things which are hidden in UPSC paper. तो वैसे होता है. अच्छा. जैसे ये कैसे यूज होता है, मैं एक हिंट दे सकता हूँ. 2023 का एक क्वेश्चन था कि मार्शलैंड, अबाउट द मार्शलैंड की कौन सा मार्शलैंड जो है वो अबाउट, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलूंगा बट यू कैन गो एंड लुक एट दैट क्वेश्चन. रन ऑफ कच्छ की बात कर रहे हो आप? रन ऑफ कच्छ. तो उसमें जो है वो कच्छ, उसमें जो है ना वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था रण, और फिर जो है वो उसमें रन ऑफ कच्छ में भी उसमें लिखा हुआ था कि रण लिखा हुआ था. तो ऐसे करके वो सेम वर्ड ही दिख रहा था. तो अगर आपने हिंदी साइड में देखा तो यू कैन एक्चुअली लुक एट, आपको जो है वो उससे आंसर समझ में आ जाएगा. सो दैट इज हाउ यू यूज द हिंदी एस्पेक्ट एज वेल, कि आप एक क्वेश्चन जो है वो ज्यादा सही कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज. तो सिमिलरली वन स्टूडेंट हैड मार्क्ड फॉक्स क्योंकि उसके दिमाग में आया था चालाक लोमड़ी. इट वाज शोएब. हाँ, बट लोमड़ी इज नॉट अ मैमल. यस सर. मैमल तो है ध्यान नहीं डेफिनेटली, था. लेकिन मेरा सवाल ये है कि शोएब, मैंने कॉपरेटिव हंटिंग देख के किया था सर. मुझे ये बोलो कि लोमड़ी के तुमने फॉक्स, जितने भी आपके फॉक्स वैसे कोऑपरेटिव करती हैं. हाँ. मुझे ये बोलो कि तुमने जितने भी लोमड़ी के इमेजेस देखे हैं, लोमड़ी तुमको अकेली दिखी है या ग्रुप में दिखी है? जल्दबाजी में कर दिया था. ग्रुप में देखने को नहीं मिलती है, राइट, लोमड़ी. हम्म. इसलिए वो कहावत भी है, चालाक लोमड़ी, लोमड़ियां नहीं बोलते यस हैं. सर. ठीक है. एंड अफ्रीकन वाइल्ड डॉग गाइस, बोनोबो वाज आस्क्ड इन 2024 प्रीलिम्स. सुनने में ईसोटेरिक लग सकता है, लेकिन क्योंकि पीवाईक्यू में आ चुका है तो पता होना एक्सपेक्टेड है. सो अगेन बबल एंड बबल नेट टेक्निक, तो दैट गिव्स यू सम हिंट. अल्टीमेटली आंसर नहीं पता है. वी टेक रिस्क गाइस. रिस्क टेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूजिंग लॉजिक्स. और पहले जैसे दिव्यांग सर ने बताया था कि ही यूज्ड टू अटेम्प्ट 95 और मोर questions, and that's the reason he was able to move 2235 above the cutoff every year 3 times back to back. अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, उसके बाद आपके अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे. फाइन. दिव्यांग, योर इनपुट प्लीज. यस. सो सेकंड स्टेटमेंट तो जो है वो इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट बिकॉज ऑल है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया तो नहीं है ऑब्वियसली.
थर्ड वाला दो इट इज फैक्चुअल बट ये सही मतलब सही क्यों होगा या आपको पता क्यों होना चाहिए बिकॉज पीएम जन आरोग्य योजना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड। तो और उसकी 5 लाख पर फैमिली इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट, मतलब उसको जब भी पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं एंड इट इज वेरी मच इन न्यूज। तो इसलिए जो है वो आपको वो डेटा पता होना चाहिए था कि 5 लाख पर फैमिली होता है। एंड इसलिए जो है वो ये थर्ड स्टेटमेंट आप बिकॉज ऑफ नॉलेज सही करोगे। एंड फर्स्ट जैसा कि दृष्टि ने बोला कि इट इज अ परवेसिव स्टेटमेंट, तो इसलिए जो है वो फर्स्ट तो मेक सेंस कि अच्छा ही कर रहा है कुछ, तो फर्स्ट इसलिए सही होगा। सेकंड तो ऑल की वजह से गलत होगा एंड थर्ड इज अ वेल नोन फैक्ट नॉलेज बेस की वजह से इट विल बी करेक्ट। सो आंसर विल बी ए। फाइन फाइन फाइन। मेरा क्या बताओ? सर एक्चुअली लाइक अखिलेश, मैं भी वही सोचा कि ओनली वन इज करेक्ट बिकॉज आई थॉट since it is giving free medical treatment in option C, I thought it should not be secondary and tertiary. I thought it is primary and secondary of some वैसे confusion होता है, तो how to deal with this? अच्छा, third statement you are referring to, the scheme provides an annual coverage of I thought it must be primary and secondary because I think जो ज्यादा खर्च तो आता है ये it's हाँ हाँ primary. हाँ ये एक्चुअली में दो तरीके से यू कैन लुक एट इट। पहला तो देखो नॉलेज एस्पेक्ट है कि मतलब ये स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड दिस इज समथिंग विच अगर आप पैटर्न देखोगे ना यूपीएससी का, तो 2023 से उसने स्कीम्स पे पूछना अगेन स्टार्ट कर दिया। लाइक 23 में 2 स्कीम थी, 24 में 3 स्कीम आई है और यू नीड टू हैव आइडिया अबाउट दैट। मतलब मैंने तीनों स्कीम सही की थी 2024 में, 3 स्कीम थी, तीनों सही थी बिकॉज आई वॉज अवेयर अबाउट इट। तो वो आपको एक तो नॉलेज एस्पेक्ट है, जो नॉलेज गैप है वो आप बेच करोगे विद टाइम। सेकंड इसकी आप खुद सोचो कि मतलब प्राइमरी में वैसे भी जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑलमोस्ट काफी कुछ तो ऐसे ही देती है, मतलब फ्री में ही प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए अलग से 5 लाख पर फैमिली प्राइमरी के लिए क्यों देगी? इट डजेंट मेक सेंस ना। तो तो तभी देगी बिकॉज सेकेंडरी टर्शरी में बहुत गैप है अपने में, तो उस लॉजिक से भी आप सोच सकते हो। Make sense, Miraz? Yes sir. Yes sir. Fine, fine. Now, let's take Divyang's input first. Divyang, यस सर। तो जैसे अभी आई थिंक नंदनी सेट की दो टाइप के पैंगोलिन इंडिया में होते हैं, वन इज द इंडियन पैंगोलिन एंड सेकंड इज चाइनीज। तो जिन्होंने पैंगोलिन की स्नो वाली फोटो देखी है वो चाइनीज पैंगोलिन थे एक्चुअली। दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इंडियन इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है। तो इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड इसमें एक्चुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक जो टेक्निक मैं हमेशा यूज करता हूँ उसको आई आई कॉल इट चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन। उसमें ये होता है कि लुक एट द ऑप्शंस। अगर आप थार डेजर्ट को देखते हो तो थार डेजर्ट इज समथिंग विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। हिमालयन फुटेल्स की बात हो रही है, बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड स्प्रेड इन दी नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, डेक्कन प्लेटो काफी बड़ा है नो डाउट, बट कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट इज स्प्रेड इन समथिंग लाइक 6 स्टेट्स में वेस्टर्न घाट स्प्रेड है एंड इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो ऑल्दो डेक्कन प्लेटो इज अ बिग रीजन बट वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब आप सोचो कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से स्टेटमेंट की होगी, तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जहाँ पे मैक्सिमम कोई स्पीशीज पाई जा सकती है? तो ऑब्वियसली यू विल रियलाइज कि भाई जो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और जो 6 स्टेट्स में फैला है वहां पे ज्यादा चांस है। तो अंटिल अनलेस आप लोग श्योर नाउ लाइक 100% श्योर नाउ इट इज दिस इज समथिंग दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट ऑप्शंस। तो आई उसमें आई डोंट नो कि कितनी क्लैरिटी आई है। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो वो पूछ actually, सकता it है। makes sense. Let me come back to Nandini. Yes, sir. तुमने चाइनीज पैंगोलिन के साथ उसको जोड़ा था, बट नाउ दिव्यांग गेव दिस रेफरेंस ऑफ चूजिंग द वाइडेस्ट ऑप्शन, ब्रॉड ऑप्शन। ठीक है, डज इट मेक सेंस टू यू? So two things make sense. First, the widest option, and second, because it's a hotspot, the probability of any species being there is more than other areas. ठीक है, ठीक है। सो क्लैरिटी है इस क्वेश्चन पे नंदिनी? Yes. Miraz, you were raising hand, you can raise your hand again, I'll unmute you. Basila, क्लैरिटी है? Yes, sir. यस, मिराज?
Sir, same thing, sir. I also thought because it's the widest area, so I thought it must be Western Ghats. So I wanted to ask regarding that because I thought while other students were answering Himalayan foothills सही होगा, I thought, but then I got it कि Western Ghats ही है. We were discussing So I Himalayan got foot, we were discussing Himalayan foothills just to highlight our own fallacies in our own thought processes. जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि हिमालय से तो वहां पे एंड्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हिमालयस नहीं दिया, हिमालयन फुटहिल्स दिए हैं. सो आई आस्क्ड बासिला, yes. बासिला lives in that एरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां पर चींटियां होती हैं क्या, इंसेक्ट्स होते हैं क्या, तो कंफर्म कर दिया उसने होते हैं. अदरवाइज द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स ओनली. मेक सेंस? Okay. Yes, sir. फाइन. एंड द लास्ट वन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वाला क्वेश्चन. दिव्यांग हाँ क्या बोलोगे? हाँ सर, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसमें. मतलब दिस इज समथिंग वेरी बेसिक नॉलेज बेस्ड कि क्वांटम कम्युनिकेशन. तो इट आंसर इज बी, एंश्योरिंग सिक्योर कम्युनिकेशन. एंड मतलब काफी न्यूज में भी था ये, तो थोड़ा वो नॉलेज वगैरह एस्पेक्ट जो उसका मिसिंग है वो देख सकता है. बट इसमें कोई ऐसे कोई टेक्निक या कोई लॉजिक नहीं, इट इज जस्ट कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको जो चल रहा है. Fine, guys. This question should again emphasize one thing, that wherever there is this gap in our knowledge base, we need to fill it, and we will be filling it. अगर बात हो रही है क्वांटम कम्युनिकेशंस प्रोग्राम की, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमको होना एक्सपेक्टेड है. एंड we should not oversimplify things and expect to apply techniques, logics, tricks, hacks in each and every question. कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपका नॉलेज ही आपके काम आएगा, कोई टेक्निक वहां पर काम नहीं एंड आएगा. दैट इज द रीजन कि क्यों जो है वो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में मैंने मतलब रखे हुए हम लोगों ने, बिकॉज वी वांट टू एम्फसाइज कि बिना नॉलेज के तो कुछ नहीं होना है. मतलब टेक्निक्स आर देयर टू सपोर्ट यू टू एंश्योर कि आप जो है वो एक्स्ट्रा 20 मार्क्स 25 मार्क्स जो है वो आप लेके आ सको. बट विदाउट नॉलेज आपका बेस ही नहीं बनेगा, तो वो 25 नंबर लेके भी आके तो भी फेल हो गए. तो दैट इज व्हाट वी वांट टू से कि उस पे कभी जो है वो आप मतलब टेक्निक्स पे अकेले कभी रिलाई नहीं किया जा सकता. It is only there to help you in eliminating some statement or answering few questions, full questions. So that is how you should take these logic and common sense. So these learnings will help you enhance your marks, but this can never be a substitute to hard work that we need to put behind getting hold of the basics of any subject. Is it your question or input? Tej? Question, sir. By using your PIB Manthan and newspaper, we can fill the knowledge gap. Current affairs, with respect to current affairs, it will With respect to current affairs. even if you don't read the newspapers for prelims 2025, your current Okay. affairs will be covered in the PYQ micro thematic analysis that you'll be doing, PYQ Manthan classes, nuclear notes, active recall classes. ठीक है? You don't need to worry about your current affairs for prelims 2025. ठीक To है? deal such type of questions, sir. Yes, this is a very basic question. We'll be doing advanced questions as well, advanced themes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Divyang, did you want to add something? Yes. No, sir. I think this was a very basic question. Okay. I don't Okay, have okay. much. फाइन. बासेला, मुझे पता है कि थोड़ी सी थकान आ रही होगी, 2.25 घंटे से ये क्लास चल रही है. लाइक वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5. ओके, वी हैव 7 मोर क्वेश्चंस टू गो. गाइस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे so that we can be able to complete in time. Basila, let's start with you only. Please read this question. And guys, अभी टाइम कम दिया जाएगा. For every question will be given 40 seconds. Next question. Sorry. Yes, Basila. Consider the following statements about Ashoka the Great. Ashoka's inscriptions are found in multiple languages, including Prakrit, Greek, and Aramaic. The edicts of Ashoka reflect his belief in the importance of Buddhism and moral governance. Ashoka actively encouraged the construction of Hindu temples across his empire. Fine, guys. 40 seconds. Time's up, guys. Please note down the answer on a piece of paper. Sir, I think we can go one by one. One by one would be better. Like because clubbing off the question is taking more time. अच्छा, ठीक है. Yes, दिव्यांग, क्या बोलोगे? Yes.
सो थर्ड तो आई गेस सबको समझ में आ होगा कि अशोका वॉज समवन हु जिसने जो है वो जो बुद्धिस्ट फॉलो रिलीजन को प्रमोट किया था. सो थर्ड इज रॉन्ग. सेकंड इज अगेन सेकंड और थर्ड जो है वो भाई रिलेटेड ही है. First is like Bakul said he didn't know. In history, especially in like ancient time, ancient and medieval, you should think from this aspect कि इस तरीके से आपको सोचना चाहिए कि मान लो आपको नहीं पता है कि ग्रीक में है या अरामिक में है कि नहीं था. बट डू यू थिंक कि एनी हिस्टोरियन कैन गो बैक एट दैट टाइम एंड कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली डिनाई कि ऐसा उसका एक भी इंस्क्रिप्शन उस टाइम पे नहीं था? इज इट पॉसिबल? मतलब ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि जो है वो कभी कोई भी हिस्टोरियन उस टाइम पे जा सकता है. लाइक फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका was deciphered by James Spencer in the 19th century. So like after 2200 years एक तब से इंस्क्रिप्शन मिलने स्टार्ट हुए हैं. अभी पता नहीं कितनी चीजें जो है वो हम लोग को मिलनी बची होंगी. तो कैन यू एब्सोल्युटली एंड यूनिवर्सली रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट कि एक भी जो है वो उस लैंग्वेज में नहीं होगा? तो यू शुड थिंक फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. इस स्टेटमेंट को कभी 100% गलत बनाया ही नहीं जा सकता है. इसलिए जो है वो इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. सो यू कैन नॉट एलिमिनेट इट. सो दिस इज समथिंग विच यू कैसे सोचा जाता है. मतलब नॉलेज इज समथिंग जो तो वो आपको मिलेगी, बट स्टिल सोचने का तरीका ये होना चाहिए. आई होप इट मेक्स सेंस. Yes, Also, sir. अखिलेश चैट बॉक्स में बोल रहा है कि ग्रीक एंड अरामाइक इंस्क्रिप्शन पिक इज इन एनसीईआरटी 6 स्टैंडर्ड ही थिंक्स. सो हाँ, यस, एनसीईआरटी में that is fine. वो तो knowledge aspect है. But even if you don't have this knowledge, then also you should think from this thought. ये आपका thought process होना चाहिए. क्या कोई भी historian बैक पीछे जाके बोल सकता है absolutely कि भाई इस लैंग्वेज में तो है ही नहीं inscription, I can bet on that? कोई नहीं बोल सकता. जितना सामने आया उसके बेसिस पे बोलेगा. इवन उसमें भी जो है वो सारी नॉलेज क्लब होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता. So you cannot eliminate this statement with a Yeah. 100% certainty. Yes, just to add one point, statement 3, guys, just let's read statement 3 again. Ashoka actively encouraged the construction of Hindu temples across his empire. बाकी की रीजनिंग तो दिव्यांग ने बताई है. One more thing that we'll be learning in the logic builder sessions. Statement 3 बोलता है Ashoka actively encouraged. Now, what is the difference between encouraging something and actively encouraging something? So this is how UPSC adds emphasis to a given statement or option. ठीक है? And makes it wrong that way. So whenever we find this red flag of overemphasis, that statement is more likely to be wrong. So Ashoka actively encouraged. ठीक है, make sense? मुझे जो सामने दिख रहे हो प्राकुल, बासिला. Yes, sir. Okay, guys, let's quickly move to the next question. Let me come to Rajesh. पढ़ लो please. Which of the following statements about sickle cell disease is correct? Sickle cell disease is caused by a mutation in the hemoglobin gene. It can be cured with regular blood transfusions. The disease only affects individuals of African descent. Select the correct answer using the 40 seconds, guys. 40 seconds. Fine, guys. Time's up. Time's up. So before Divyank gives his thought process, Pratiksha, it's good that you voted in the recent Maharashtra elections. वोट दिया था ना तुमने? कैसे पता लगा मुझे? यस, वेरी गुड. प्रतीक्षा, स्टेटमेंट 2 के बारे में. स्टेटमेंट 1 सही आंसर है तुम्हारा. एंड अबाउट स्टेटमेंट 2, डू यू थिंक दैट इट इज इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी? व्हाई डिड यू एलिमिनेट इट? अच्छा, मैंने शुरू कर दिए लिप सिंकिंग लिप रीडिंग क्लासेस. 2.0 में सीख जाऊंगा. फाइन 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 फाइन. दिव्यांक, योर इनपुट प्लीज. सो थर्ड तो ठीक है, बहुत रेस्ट्रिक्ट हुआ है सब. एवरीवन कैन सी दैट. तो थर्ड वी कैन एलिमिनेट. फर्स्ट में इफ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट उसमें लिखा हुआ है कि म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन. तो म्यूटेशन इज अ लाइक बिग थिंग. तो जब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो वो बहुत ही कैजुअल वे में लिखा हुआ है कि इट कैन बी क्योर्ड विद रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. मतलब एक डिजीज हो रही है म्यूटेशन से एंड यू आर क्योरिंग दैट बाय रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आपको लग नहीं रहा है कि काफी जो है वो कितना वियर्ड रिलेशन है दोनों के बीच में, कि इतनी मुश्किल से डिजीज होती है और बस ब्लड चढ़ा दो और सही भी हो गई. तो इट डजंट मेक सेंस. तो इसलिए जो है वो यू कैन सी कि दीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर.
एंड देयर इज नो कंपैटिबिलिटी इशू है उसके बीच में. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो डजंट मेक सेंस एंड वी कैन एलिमिनेट दैट. थर्ड भी हटा देंगे. सो आंसर विल बी ए. Yes, just to add one thing, guys, just to simplify it further, Rajesh, स्टेटमेंट 2 सिकल सेल तो चलो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन. स्टेटमेंट 2 सेज इट कैन बी क्योर्ड. क्योर का मतलब क्या है गाइस? कंप्लीटली ठीक कर देना. ठीक है. And with regular blood transfusions, my question to you is, if something requires regular blood transfusions, would it be called a cure, or would it be called more of a managing thing? So it is a managing thing, sir. It's like continuous treatment. It's a continuous treatment, more of management required. It can't be called a cure, right? No, sir. So I had asked this to Pratiksha as well. Do you think statement 2 is inherently contradictory? So when we speak about compatibility test, at one level, we probe the compatibility between the question and the options or statements. At the another level, we seek or we probe compatibility between the given statements. And at the third level, we probe the compatibility of the given statements. Is the given statement inherently compatible? The components of the statement are compatible. Are they coherent? और आर दे इनकोहेरेंट. तो यहां पर हमने देखा कि क्योर एक साइड पे ये भी बोल रहा है कि क्योर हो रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी. सो इट इज इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, इनकम्पैटिबल. मेक सेंस टू यू राजेश? Yes, sir. Okay, now I hope everyone is clear on this. Prakul, clear ho? Fine. Now guys, let's quickly move to the next question. Let me come to Mahesh. Mahesh, please read the question. Consider the following adulterants and associated food items. दो बार आ गया. Substance and item: chalk powder, salt, urea, milk, sawdust, tea leaves. How many of the above pairs are correct? ठीक है गाइस, 40 सेकेंड्स. तुमने कहा कि फूड आइटम 2 बार आ गए. फूड आइटम. क्वेश्चन बनाते समय शायद भूख ज्यादा लगी होगी, उस वजह से 2 बार आ गया. 40 सेकेंड ले लो गाइस. ठीक है गाइस, टाइम इज अप. दिव्यांग योर इनपुट प्लीज. सर यही लॉजिक यही है. I think he might have attempted that bootcamp session. तो उसमें ये एक PYQ था, 2017 का PYQ था, जिसमें we discussed about that question जो which was about this Chinese food जिसमें monosodium yes वो होता है, MSG होता है. तो वही है कि अगर जो है वो 0.1% भी है या 0.0001% भी है, तो यू कैन नॉट डिनाई कि जो है वो एडल्ट्रेंट नहीं होते हैं या नहीं मिलाए जाते हैं. तो इसलिए जो है वो यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी स्टेटमेंट इन दिस केस. So answer will be all three. So I hope it is clear. Yes. Are you clear, अदिति? तुम बोल रहे थे कि इसमें ऑल्टरेशन हो जाएगा. क्लैरिटी है? फाइन. वैसे एक्चुअली में लाइक यूरिया एंड मिल्क इज बहुत कॉमनली वो एडल्ट्रेंट होता है. जस्ट टू टॉक ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट, बहुत ही कॉमन होता है. दैट इज वन ऑफ द मेन एडल्ट्रेंट इन मिल्क. Fine, guys. Let's quickly move ahead. Let me come to you, Firdos. The question is this. Please read it. Consider the following benefit of carbon farming. First, it improves soil water retention capacity. Second, it contributes to soil biodiversity by increasing microbial life. Third, it decreases the carbon content in the soil over time. Which of the statement given above are correct? All right, guys. 40 seconds. Fine, guys. Time's up. Firdos. ठीक है. दिव्यांग, your input please. सर वही है, सेम लॉजिक ही है ऑलमोस्ट, कि कार्बन फार्मिंग जो है वो इज ऑब्वियस दैट देयर इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट. एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर समथिंग जो पॉजिटिव नोट पे है, बट थर्ड इज इन द नेगेटिव एस्पेक्ट.
तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर कार्बन कंटेंट कम होगा तो सॉइल मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट जो है वो डजंट मेक सेंस देन, सो वी कैन एलिमिनेट थर्ड एंड देन फिर आंसर है अपने सामने। So it was an easy question. We can move on to next now. ठीक है। प्राकुल, प्लीज रीड दिस वन। Which of the following is a primary reason millets can thrive in nutrient-poor soils? A. High demand for nitrogen and phosphorus. B. Efficient root system that absorbs nutrients from deeper soil layers. C. Ability to fix atmospheric nitrogen like legumes. D. Dependence on organic fertilizers only. ठीक है guys, 40 seconds, in fact 30 seconds. This is an easy one. This is easier compared to the previous questions that we just discussed. Also, I बाकी didn't. पहले पहले दिव्यांग को अपना इनपुट देने दो। I'll come back to you on this. Yes, दिव्यांग। Yes, like answer तो B है, काफी लोगों ने वही बोला है। Again, the question is कि रीजन न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है, तो सॉइल से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो पहले ही एलिमिनेट होगा कि अगर जो है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की हाई डिमांड है, तो हाई डिमांड होगी तो क्यों ही जो है वो मिलेट को प्रेफरेंस मिलेगी। सी इज अबाउट एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइक लेग्यूम। तो अगेन उसका सॉइल से बहुत ज्यादा लिंक नहीं, प्लस एक और जो चीज मैंने बोली थी बूट कैंप में कि जब भी दो चीजों को कंपेयर किया जाए लाइक एज ऐसे करके, जब भी जो है वो दो कंपैरिजन होंगे वो स्टेटमेंट गलत होने का बहुत हाई चांस है। तो बाय यूजिंग द नॉलेज कॉमन सेंस एंड आल्सो बाय यूजिंग द टेक्निक यू कैन एलिमिनेट सी। डी जो है वो अगेन ओनली लिखा हुआ है तो इट डजंट मेक सेंस। तो बी जो है वो सबसे ज्यादा इज समथिंग व्हिच मेक्स मोस्ट सेंस कि एफिशिएंट रूट सिस्टम है, जितना डीप जाएगी उतना ज्यादा जो है वो बेटर होगा। तो आंसर विल बी बी। यस सर, नाउ यू कैन। बासिला, यू आर सेइंग Yes. कि सर क्या हुआ अगर वो नाइट्रोजन फिक्स कर भी पाता होगा तो क्वेश्चन के साथ उसका लिंक लिंक नहीं बन रहा है। सो दैट्स गुड, यू आर एबल टू ड्रॉ compatibility and you were able to prove whether the given option is compatible or not with the demand of the given question. ठीक है, सो लॉजिक फ्रंट पे आप सही सोच रहे थे, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट नॉलेज फ्रंट पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा बिकॉज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन this is done by legumes. Millet is a grain. Yes, sir. It can never fix nitrogen. ठीक है, सो यहाँ पर जो है ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिकली बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज में ये दिया हुआ है ज्योग्राफी के, ठीक है, वो हम कंसोलिडेट करेंगे आने वाले समय में। एंड आई कैन सी तेज रेजिंग हैंड। इस तेज Sir, now only Divyang sir revealed some techniques, sir. I am not able to recall ठीक है, some ठीक है, some आपका techniques. टेल मी योर डाउट तेज। Sir, Divyang sir now only revealed some techniques, sir. I am not able to catch. So please अच्छा, you are not repeat. able to relate to the technique. You are referring to which question? This particular question, millets wala? Yes, sir, this one. There was no new technique as such. Basically, you are referring to option C, ability to fix atmospheric No, sir. nitrogen Sir, like Divyang sir revealed some techniques, sir, now only from the knowledge based and some technique based. Sir, I So think this is Yeah. related to the like legumes. and it is yes, comparison. How to comparison, sir? How to compare? ऑप्शन सी की बात कर रहे हो तुम तेज? हाँ दिव्यांग। हाँ सर, so I think he's talking about option C. तो वो टेक्निक, the technique is that if words like as, similar manner, such as come in any statement, there is a high chance that that statement will be wrong. So you will get to know more about this in the logic poster session which sir is going to take. I guess sir will be talking about that in great detail later. And also over the course of over the period of time, you will get to know more such techniques from me. So then you won't be having this doubt. See, just Okay, to sir. summarize this stage, though there are two variables, variable X and variable Y. Here, variable X, atmospheric nitrogen, variable Y, legumes. Two variables are being confused, compared. ठीक है? Then
if the given statement or option has this kind of a structure where comparison is happening between two variables, it is more likely to be wrong. Make sense, Tej? Yes, sir. Like if you see the words like such as like, then we'll get wrong, sir. Yes, more likely to get it wrong. More likely Yes, that the given there is a option. higher chance. There is a higher chance that that statement will be wrong. But again, like techniques are only there to support the knowledge base. So this question could have been dealt only on the knowledge base. If you have decent knowledge, you could have answered this. So, but I only added this technique. So although Yes. there is no need in this question as such. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Fine, guys. Let's quickly move ahead, and we are coming towards the end of the session, slowly and steadily. Sai Pratik, please read the next question. Consider the following statement about major ports in India. Visakhapatnam Port is a natural harbor located on the eastern coast of India. Kandla Port is the largest port in India by cargo tonnage. Kochi Port is a major transshipment hub for containers. Very, very interesting question, guys. Please attempt compulsorily 40 seconds. Time's up, guys. Yes, sir. ठीक है. Fine. Divyang. Okay. Yes. So फर्स्ट कांडला इज समथिंग जो अभी यूपीएससी पीवाईक्यू में ही आया हुआ है, लाइक 23 का ही क्वेश्चन है ये. तो एक यहाँ पे और मैं इनपुट देना चाहूंगा बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन कि जब भी यूपीएससी जो है ना वो अल्टरनेट ईयर्स पे काफी फोकस करता है. तो लाइक इफ यू आर गोइंग टू गिव 2025, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द 2023 पेपर. उसमें जितने भी गलत स्टेटमेंट्स भी हैं वो भी जो है वो आप जाके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना, लाइक गो एंड सर्च ऑन विकिपीडिया अबाउट दोस टर्म्स एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नेम, प्लेसेस नेम जो भी है, बिकॉज आई हैव सीन दिस पैटर्न व्हिच यूपीएससी फॉलोज. तो एंड मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि 23 जो 25 का पेपर होगा वो काफी थोड़ा सा लाइक गूगली टाइप का होगा. मतलब कुछ उसमें उल्टा सीधा ऐसा होगा, क्योंकि ऑड ईयर्स में यूपीएससी थोड़ा उल्टा सीधा पूछता है. मतलब जैसे 23 में जो है वो उसने पूछ लिया था और सब मतलब ऑप्शन हटा दिए थे एंड ओनली 1 ओनली 2 वाला लेके आ गया था. 24 इवन ईयर्स में थोड़ा अच्छा खेलता है वो, लाइक इट इज ऑन अ लाइटर नोट, बट ऑड ईयर्स में थोड़ा वो गेम खेलेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कुछ होने वाला है. यहाँ पर सब सो बी परेशान होते प्रिपेयर्ड. दिखेंगे. मेराज, प्रतीक्षा, अदिति. गाइज, अगर डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, आसान होगा सबके लिए होगा. ठीक है. हाँ, वो ये चीज आपको याद रखनी है कि मतलब आप पहले से ही जो है वो सोच के जा रहे हो कि कुछ आने वाला है. तो इट्स अ गुड थिंग कि आप जो है वो नॉर्मल गेम खेल पाओगे और लोग जो है वो पैनिक मोड में खेलेंगे. सो एनीवे यू हैव एडवांटेज. सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन कि इसमें क्या है. तो कांडला वाला जो है वो थोड़ा वेल नोन फैक्ट है, कुछ लोगों को अभी नहीं याद आ रहा होगा कि कांडला जो है वो लार्जेस्ट नहीं है, इट इज जेएनपीटी विच इज द लार्जेस्ट. तो वो इसलिए जो है वो सेकंड को एलिमिनेट करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर. बट इवन बाकी स्टेटमेंट को भी अगर हम लोग देखें तो विशाखापट्टनम पोर्ट नेचुरल पोर्ट है ईस्टर्न साइड, ये तो बेसिक ज्योग्राफी है. एंड कोची वाला स्टेटमेंट बहुत ही जनरल है कि इट इज अ मेजर ट्रांसशिपमेंट हब फॉर कंटेनर्स. तो मतलब मेजर कितना मेजर है किसी को पता थोड़ी है. इट इज अ वेरी जनरल एंड सब्जेक्टिव वर्ड. अब मेजर का मतलब हो सकता है कि उसमें 1000 टन की कैपेसिटी हो, या फिर हो सकता है कि उसमें 1000 कंटेनर की कैपेसिटी हो, या फिर 10,000 की हो. मेजर कैन बी एनीथिंग, सो यू कैन नॉट एब्सोल्युटली मेक मार्क इट रॉन्ग. तो इस वजह से जो है वो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा. एंड सेकंड इज वैसे भी फैक्ट है. सेकंड अगर आप देखो तो लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो दैट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट. तो उस लॉजिक से भी आप हटा सकते हो एंड बाय नॉलेज बेस आल्सो यू कैन एलिमिनेट इट. जस्ट अ फैक्चुअल करेक्शन. आई थिंक जल्दी में यहाँ पर आर्टिफिशियल और नेचुरल में कंफ्यूजन हो गया है. विशाखापट्टनम पोर्ट गाइस ईस्टर्न कोस्ट पर जो है वी फाइंड आर्टिफिशियल पोर्ट्स. वेस्टर्न पोर्ट्स वी हैव नेचुरल पोर्ट्स. से फॉर एग्जांपल मुंबई. ठीक है. The natural conditions are very conducive for ports on the western coasts. So Visakhapatnam is a major port, but it is an artificial harbor. ठीक है. तो यहाँ पर it has to be taken, statement 1 has to be taken as wrong because of that factual inaccuracy. Otherwise, the entire description given is very much on the right lines. यहाँ पर किसी का कोई अगर डाउट है प्लीज रेज हैंड. नंदिनी is raising hand. The Wikipedia says that Visakhapatnam is a natural harbor.
विशाखापट्टनम भूल पोर्ट। जाओ जो आपके एनसीईआरटी में है. लाइक आई कुड सी पीपल नॉडिंग देयर हेड्स. आई कुड सी प्रतीक्षा नॉडिंग हर हेड. प्रतीक्षा, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? विशाखापट्टनम, इज इट नेचुरल और आर्टिफिशियल? पूछ रही हो या बता रही हो? ओके गाइस, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी में और वाइडली यही अंडरस्टूड है कि ईस्टर्न कोस्ट पर जो है आपके आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं. बट स्टिल विल स्टे ओपन टू करेक्शन. इफ यू गेट विकिपीडिया के अलावा किसी स्टैंडर्ड सोर्स पर आपको मिलता है, प्लीज शेयर इट. ठीक है, फाइन. Guys, let's quickly move ahead. And Nidhi with an iPad, please read the question. Consider the following statements about the international climate change initiatives. The Paris Agreement is a legally binding international treaty aimed at addressing climate change. The Kyoto Protocol included binding emissions reduction targets for developing countries. RED Plus aims to reduce emissions from deforestation and forest degradation. Which of the statements given above are correct? ठीक है guys, 40 seconds. Time's up guys. ठीक है, understood. Divyank, your input please. सो एक्चुअली मैं ऐसे इश्यूज जो है ना वो बाइंडिंग तभी होता है जब लीगली होगा. मतलब ग्लोबल लेवल पे जब भी होगा वो लीगली होता है. उसमें उस स्टेटमेंट में लिखा नहीं गया है वो अलग बात है. बट अगर बाइंडिंग है तो वो लीगली ही होता है. ऐसे ऐसे तो लीगली बाइंडिंग को कंट्रीज फॉलो नहीं करती हैं, तो बाइंडिंग को तो क्या ही करेंगे ऐसे अगर कैजुअली बोल. तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं. कमिंग ऑन टू दिस, मतलब कि आंसर क्या है. तो जैसे किसी ने बोला था कि अभी क्योटो प्रोटोकॉल की पेरिस एग्रीमेंट में उनको डाउट था, बट क्योटो प्रोटोकॉल वाली स्टेटमेंट में आदेश शो कि वो डेवलपिंग कंट्री के लिए बाइंडिंग एमिशन थे. जो भी बोल रहे थे, आई सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, बट कोई अभी बोल रहा था कि डेवलप वो सेकंड स्टेटमेंट को लेकर शो. तो सेकंड स्टेटमेंट में आप शो थे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के. यस, It was not तुम्हारे डाउट था empathy. आदित्य, राइट? हाँ सर, मतलब सेकंड तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज पे बाइंडिंग क्यों करेगा कोई, जो अभी वो तो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है. सेकंड इज मोर रॉन्ग. प्लस पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग, तभी तो जो है वो उसको लेके इतनी डिबेट होती रहती है हर टाइम पे. तो इसीलिए जो है वो इट्स इंपॉर्टेंट कि जितने भी लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, आप जाके उनकी एक लिस्ट बना लो. बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि कंट्रीज जनरली डोंट एग्री ऑन एग्री वेरी ऑफन. तो बहुत ही कम ऐसी चीजें लाइक लेस देन 10 ऐसी ट्रीटीज हैं जो जनरली बाइंडिंग होंगी एंड लीगली बाइंडिंग होंगी. एंड देन उससे आपको समझ में आ जाएगा. तो द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो आपको देखना था कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उसमें लिखा हुआ है. दैट वाज द इशू, मतलब दैट वाज द मेन लूप होल. तो आई होप जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को लेकर डाउट था जिनको, वो क्लियर हो गया होगा अभी. यस सर. आर यू क्लियर आदित्य? हाँ सर. ठीक है. वेरी क्विकली, वरुण, तुम नींद में दिख रहे हो मुझे. वैसे पूछ भी नहीं सकता. थोड़े से वरुण का स्वैग एकदम जबरदस्त है, हमेशा कुछ ना कुछ जेस्चर्स करके बताता रहता है. फाइन. लेट मी कम टू मेराज. मेराज, प्लीज रीड द लास्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Consider the following. Immediate response. कौन पढ़ रहा है ये साथ में? कौन सी लड़की ये साथ में पढ़ना चाहती है? Please keep your mics muted, guys, when you're not speaking. Yes, Meraz. Consider the following statements regarding the Quit India movement. The Quit India movement was an immediate response to the Cripps mission, which failed to meet India's expectations for self-rule. Option 2, the movement was largely confined to urban areas and had limited rural participation. 3, after the Quit India movement, the British government's stance on Indian independence began to shift due to increasing political pressure. Which of the statements given above are correct? Fine, guys. Last question, 30 seconds.
Fine, guys. Time's up. I don't remember the timeline Those perfectly. those students who had attended the boot camp in Devani ma'am's class, we had seen these blind spots, some information that has been given in our conventional books, and UPSC has been asking questions based on that information, but we take that for granted and we miss out. ठीक है, that we'll have to focus on. दिव्यांग पहले आप इनपुट दे दो अपना. Yes, sir. So, like many, some of the candidates were confused about the timeline. So, that is very common, especially in the modern history. बहुत common होता है कि we tend to forget the timeline कि कौन सा event किसके बाद हुआ था, कब हुआ था. So that is okay. But ये question उसके बिना भी solve हो सकता था. Like even with a common sense कि second statement जैसे कुछ लोगों ने identify कर लिया कि largely confined to urban areas. When we know कि Quit India movement was a watershed moment in the India's national freedom struggle. तो we know कि जो है वो urban areas में कैसे confine हो सकता है. It has to, इसकी जो geographical reach है that should be very high. And उस समय जो है वो society was mostly was not urban based, it was rural based. So इसलिए जो है वो second statement doesn't make much sense. So even if you eliminate statement 2, you will get option A, like option A will be the answer. तो टाइमलाइन तो ठीक है, आप रिवाइज करते जाओगे, बट फोकस ऑन द कॉमन सेंस. लाइक क्वेश्चन देख के आपको स्किप नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल. जस्ट बाय यूजिंग कॉमन सेंस आल्सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. So this is something you can learn from this. Also, just to add one point, guys, there is something that we'll be learning in the logic builder sessions. When statements or options framed by UPSC have a superfluous element, that statement or that option is more likely to be wrong. If I ask you guys, what do you understand by the word superfluous? Krishna with an iPad. Sir, Asila. एक्स्ट्रा एक एडवर्ब ऐड कर दिया सर, लार्जली एंड सर लिमिटेड ऐसे सर ऐड कर दिया. ठीक है, you are partially correct. Largely is not. सर उसको एक्स्ट्रा. ठीक है, I'll come to it. बासिला बताओ superfluous क्या होता है? सर जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो सेंटेंस में उसको ऐड कर दिया. So basically, even if you remove that particular term or phrase, the meaning of the statement doesn't change. That would be superfluous. ठीक है, मोटा मोटा यही मतलब है. Now guys, in statement 2, when the statement says the movement was largely confined to urban areas, if I put a full stop here, even then the statement will give exact same meaning. The movement was largely confined to urban areas, मतलब rural areas में नहीं था. The statement goes on to say and had limited rural participation. मतलब same information फिर से दी जा रही है अलग शब्दों में. Does it make sense to you, Basila, Prakul? Yes, sir. Right? So superfluous words, superfluous phrases in the given statements or options, ठीक है, will act as a red flags. We'll learn how do we identify these red flags in our subsequent sessions. So again, you can also use that to eliminate statement 2. So guys, this was our session first ranker super test. It took us 2.5 hours. Ideally, we are trying to complete it in 2 hours, but because discussions हो रहे हैं and these are in initial sessions, सारे learning सबके लिए नए हैं, तो शुरुआत के कुछ sessions थोड़ा सा stretch हो सकते हैं. As we move ahead, these sessions will get on compressing, क्योंकि discussion की requirement कम होती जाएगी. Before we end, guys, if you have any inputs, any doubts, any questions, please raise your hand, or else we can end the session. I can see Mera's raising hand. Yes, Mera's, बताओ. Sir, my doubt is whatever logical reasoning or tricks we are learning, are they even applicable for any state PCS exams also? That is one doubt I have. Like how extent it is also correct for state PCS exams? Both yes and no. Both yes and no. See, like I keep on getting these inputs from students that, sir, we used your techniques, your thought processes, your logics in so and so states exam, and those are helpful. Even state PCS के जो CSAT पेपर होता है, CSAT से drawn होता है, inspired होता है, उसमें भी बच्चे बोलते हैं कि सर we use this learning CSAT paper and that helped us a lot. मुझे कई सारे फोन आते हैं. एक बार मुझे फोन आया एक बच्चे का कि सर आई एम सो एंड सो
and I've been selected as the Tehsildar in Karnataka, I believe. And your classes really helped me. मैंने बोला, were you part of these sessions? मैंने बोला, उसने कहा yes. So मैंने बोला, were they really so helpful in the state PCS? Then he said yes, those were exactly verbatim replicable. Then I came to know. और ऐसे कई सारे जब बच्चे आके बोलते हैं तब हमको पता चलता है कि यस, स्टेट पीसीएस में वो अप्लाई होता है. यूनिवर्सली सारे स्टेट्स में अप्लाई होगा नेसेसरी नहीं, क्योंकि हर स्टेट पीसीएस का पैटर्न अलग होता है. So you will have to see to what extent it is applicable, right? But yes, one thing. Yes, sir. Please finish. Yes, yeah, that's the thing. Yes, you continue, Divyang. Okay. But one thing what you can do is that you can go and look into PYQs, like try to apply these things in PYQs and then see whether they follow this thing or not. So in this manner you will know whether you know the technique or not, and whether that state pieces follow that technique or not. Because what I have heard from people that some of the states the questions are very like one word type of question, so there is a less chance to apply such techniques. So you can go and look at it rather than blindly applying it in the real time paper. So that is something you can do. I think no more doubts remain. Fine guys, fine. So it was a great session. First session tha aaj ka. Guys, thank you all for sticking on till the very end, and thank you Divyang. Guys, Divyang has been running very busy, very hectic. He also has to go to the National Police Academy at Hyderabad. He has to do a lot of shopping. Lot of things are going on at puja and all is going on at his home. There are other engagements. He's also writing a book which is in the finalization stage. So, but he is very enthusiastic and positive with respect to contributing to this initiative and helping you guys. So again, thank you Divyang for making out time. It's a pleasure. Thank you. Fine guys. Chalo, bye. Good night. Bye.